I have lovely nieces and nephews, and I love spending time with them. That is how I resonate with the kids here. You know, I'm able to talk to them and be friends with them because I have this मेरे niece and nephews के साथ मेरा बहुत अच्छा bond है. कई बार क्या होता है ना, हम सीन कर रहे हैं और करते करते फील आ जाता है कि शायद इसको वैसे कर सकते हैं. एंड जब वो सीन टेलीकास्ट हुआ है या कुछ भी आपका वर्क, नॉट जस्ट द सीन, कुछ भी वर्क आया है, उसके बाद अगर किसी ने बोला यू कुड हैव डन इट दैट वे, तो आपको लगता है मैं भी सोच रही थी, नेक्स्ट टाइम आई विल बेटर लिसन टू माय हार्ट. हाय, दिस इज आयशा सिंह एंड यू आर वाचिंग टेली बाइट्स. टेली बाइट्स में आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती आयशा सिंह, जिन्हें आप जानते हैं गुम है किसी के प्यार में, जो निभाती हैं डॉक्टर सई जोशी का किरदार. आयशा सिंह, स्वागत है आपका टेली बाइट्स में. कैसे हुआ? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच आयशा. सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको डॉक्टर सई जोशी इन नामों से बुलाते हैं, तो आपको वो कैसा लगता है? डेफिनेटली अच्छा लगता है, क्योंकि जो किरदार हम निभा रहे हैं वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है, उनको पसंद आ रहा है, सराहाया जा रहा है, अच्छा लगता है. आप कई समय से गुम है किसी के प्यार में चलता आ रहा है, तो इतने लंबे समय तक एक कैरेक्टर में रहना, उसको निभाना, एक पर्सनल लाइफ में भी कई बार वो कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ये होता है, तो उन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हो? सी, कहीं ना कहीं when it is too emotional, too dramatic for a very long period of time, you definitely you plan your life accordingly, where you decide to cut off either talking about it or being involved in the scenes, like after post shoot and pre shoot. तो वो सारी चीज़ें you have to figure it out if it is too intense, and if it is something light hearted and it's easy going, then of course then it's still fine. But definitely अगर heavy हो जाता है, then you have to plan your days accordingly, that you have to make sure that people around you understand that there is a life beyond. And then I try and take my own space, like I cut it out from talking about it a lot or interacting about it to people, or even if it's being around on Instagram about the show or anything, then because it's already very heavy for for an artist to get into the skin and perform and uh, live a life for such a long period of time and for such long hours. So yeah, that's something that helps you sing. सो जो सई का किरदार है, ये एक बहुत मजबूत लड़की है जो वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाती है. तो आप अपनी असल ज़िंदगी में कितने हद तक उस तरीके की मतलब उस सई जैसी हैं आप, या नहीं है? काफ़ी सही गलत की सेंसिबिलिटी है. आई हैव बिन अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मुझे द राइट्स of not just females, human rights, and what is right thing to do, what is wrong thing to do, and नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों की एक वाइजनेस, सॉर्ट ऑफ वाइजनेस है. तो where I do not where I am not like Sai is how she she put things across, like she's she's right or wrong, there is no middle path. Okay. She's यही है, and she's very outspoken about the right and wrong, whereas I would not go and meddle in someone's life. I would be like, this is wrong what you're doing, but in the end it is an individual's choice. अगर उनको गलत करना है तो वो eventually करेंगे, या आप पीछे पलटोगे वो करेंगे. So it's difficult, but she as a person, she meddles in people's life and she makes sure that अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो सही हो. Whereas I would guide through the path of कि क्या सही है मेरे accordingly, क्या हो सकता है, what are the possibilities that people can correct their lives, या क्या कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको कैसे correct किया जा सकता है. But I would not do it for somebody. It is just आप खुद के लिए वैसे स्टैंड लेते हो?
खुद के लिए भी मैं आई एम नेवर यू नो I would listen out to people के अच्छा this is their perspective. I'll be like okay, this is not my opinion. कभी कभी कई बार क्या होता है ना, इंसान का सही और गलत मतलब सब्जेक्टिव हो सकता है, बिकॉज सिचुएशन वैसी हो सकती है. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर पर्सन's opinion, and if it's not right according to you, then you walk your own path. You take your own different direction. So that is my way of going about things, where if it's not according to me, I'm like all right, I distance myself from such people, or I like okay, क्या बात करके सेंस बनेगा, क्योंकि राइट और रॉन्ग हमारे अलग हैं, ओके तो मॉरल ग्राउंड्स अलग हैं. तो आई एम लाइक अ क्वाइट पर्सन. आई गो माय ओन पाथ. ऑलराइट. कई लोग ऐसे भी हैं, कई औरतें ऐसी हैं जो खुद के लिए नहीं बोल पाती हैं, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं. एज यू सेड आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? बिकॉज समवेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हर बारी चीज़ें अपने ऊपर नहीं सह सकते. समटाइम्स यू हैव टू बी वोकल अबाउट इट. Absolutely, and this is not a matter of sometimes. Actually, you should always be vocal about if anything is being wronged. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए. अच्छा, आवाज़ उठाना हमेशा ये नहीं होता कि उसका एक बड़ा बखेड़ा बनाया जाए, तमाशा बनाया जाए, या डायरेक्ट एक तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. तो पहले ग्राउंड लेवल पे सॉल्व करना चाहिए, पर्सनल लेवल पे, सामने वाले को समझ के. एंड इफ इट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, then definitely you should go all out in the open. And I would also want कि फीमेल्स को तो अपने साथ गलत हो रहा है, डेफिनेटली वॉइस आउट करना चाहिए, बट पीपल अराउंड सच फीमेल्स, उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कई बार होता है कि अच्छा इतने टाइम से हो रहा है तो पहले क्यों नहीं बोला, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट. बहुत बार मुश्किल होता है कहना कि भाई, कई बार लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, उसमें ही समय निकल जाता है, समय क्या साल निकल जाते हैं. तो वो चीज़ आपको लाइक दिस इज दैट इज बाय रिस्पेक्टिंग अदर पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी खुद की जर्नी है, जर्नी ऑफ लाइफ, जर्नी ऑफ इमोशंस, रिलेशनशिप्स. एक वो इंसान एक पर्टिकुलर पैटर्न में ग्रो हुआ है, उसकी एक पर्टिकुलर सोच बनी है. अगर उसके साथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ गलत होना शुरू हुआ है, तो वो जिस माहौल में पला बड़ा है, उस चीज़ का इन्फ्लुएंस रहेगा. हो सकता है वो तब डिसाइड नहीं कर पाए कि मेरे साथ गलत, बट एक पॉइंट के बाद इंडिपेंडेंस आती है, तब उसको लगे कि यार नहीं, मेरे साथ तो बहुत टाइम से गलत हो रहा है, आई शुड रेज माई वॉइस नाउ आई हैव टू. इट इज़ नॉट कि आप कब आपने करेज फाइंड किया वॉइस आउट करने पे, आपने करेज फाइंड किया, हेड्स ऑफ टू यू, एंड go ahead with it. And people around such people, not just females, any human being who's being wronged. अगर बंदों के साथ गलत हो रहा है, तो भी अगर बंदों को लेट समझ में आया कि यार गलत हो गया, तो यार वॉइस आउट करो, कोई बात नहीं. लेट वॉइस आउट करा तो कोई बात नहीं, happens. Equality, yeah, it happens, and people around you should be understanding. और अगर आपके आसपास वाले लोग नहीं समझ रहे, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है. आप अपने साथ सही करो, और अपने साथ सही होना चाहिए. मेक श्योर ऑफ दैट. People around you will have opinions. It's okay. People can have opinions. अच्छा, इन सब में मेंटल हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप भी रोज़ सेट पर आते हैं, हम आपको कंटिन्यूसली शूट पर देखते हैं, तो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव? वो मेंटली आप कैसे अपने आप को फ्रेश रखते हो? See, like I told you, if there are heavy sequences going on emotionally and dramatically, तो मैं बहुत negative या critical approach और उनसे थोड़ा distance रखती हूँ, because it's a story, there is a phase, and story changes, so will the opinions change, right? तो उस phase के time पर सबका कुछ opinion हो सकता है, but then the story will change, take its own turn, है ना? So that, and apart from that, then I have like lovely friends here. I have a lot of friends here. The entire production team, the entire unit, then co-actors, Aru, Savi, and so I keep myself occupied around everybody, and everybody is very happy-go-lucky. It's a nice place to be at and work.
तो लोग अच्छे हैं एंड सब हंसी मजाक में हो जाता है, एंड देन यू गो बैक होम, यू रिलैक्स, देन यू मीट योर फ्रेंड्स, take a little break, breathe. Yeah. And I do not get into the race of, uh, like like social media for like I do not get into the race of ke karna hi hai हाँ, post, बिल्कुल. because all these things, they can create anxiety because you're working for long hours, 14 hours, 15 hours, and you have a lot of scene का pressure, इसका pressure, उसका pressure. तो उसमें और pressure add on नहीं करती मैं. I do not take anything to my heart. I'm very very open to constructive criticism, but I also make sure that there is a time for it. When I think कि ये मेरी बहुत important performance हुई है, and if it's been appreciated, nice, but if it is being criticized or something, there is an input किसी की तरफ से, अपने ही हैं fans, हमारे अपने ही हैं. Yes. तो अगर कुछ ऐसा constructive है तो I keep it in mind. I do not react or feel bad, or because it's an opinion, right? It's only there to make you better. So you can take it like that. और and if it's like अगर आपको भी लगता है कि यार कई बार क्या होता है ना, हम सीन कर रहे हैं और करते करते फील आ जाता है कि शायद उसको वैसे कर सकते हैं, एंड जब वो सीन टेलीकास्ट हुआ है या कुछ भी आपका वर्क, नॉट जस्ट द सीन, कुछ भी वर्क आया है, उसके बाद अगर किसी ने बोला यू कुड हैव डन इट दैट वे, तो आपको लगता है मैं भी सोच रही थी, नेक्स्ट टाइम आई बेटर लिसन टू माय हार्ट. तो कई बार ऐसा भी होता है. तो इट इज लाइक यू शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, एंड लव इज ऑलवेज, लव तो हम लेते ही हैं, मोर देन हैप्पी टू वेलकम इट. बांटना भी चाहिए. हाँ, right. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.